Good morning, all the students. I'm Shivam Saxena, your political science teacher. In the previous module, we have discussed about some of the functions of Constitution, and the chapter number 1 is going on Constitution at Work. So we have discussed about the first function of the Constitution, that the Constitution make a coordination between a two community and a different communities, and also create the assurance between the public so that they can survive in a proper order. So the first function we have discussed about, the first function is provide the set of basic rules that allow the minimal coordinations amongst the member of the society. Means the constitution provide a set of rules, and that rules has been perfectly designed so that there shouldn't be any kinds of the clashes between the different types of the diversities. As you know that India is a very diverse country. In India, the people who belongs to the different caste and community live in India. So there might be the clashes between the rules. So all these things has been considered first, and then it has been checked many time, and then finalized that these are the rule, and that rule cannot make any type of clashes in between the persons one and another. The second functions we have discussed about that, who is going to be rule on that on us, जो हमने सेकंड में पढ़ा था. The second function is of the constitution specify who has the power to make the decision in the society. ठीक है, तो सेकेंड फंक्शन में हमने पढ़ा था कि जैसे एज वी आर हैविंग अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो उसमें ये सारी चीज़ें डिसाइड कौन करेगा कि क्या, एंड हु इज़ गोइंग टू टेक ऑल द डिसीजन इन आवर फेवर. So that is being decided by the Indian Constitution. So as India is Indian Constitution known as a world very big constitution and a democratic constitutions too. So this all things has been mentioned in the Constitution, that who will make और who will specify which kinds of the rules and regulations. ठीक है, तो उसके लिए मैंने डिस्कस करके आपको बताया था. जैसे वी हैव डिस्कस अबाउट द लोकसभा, तो हम लोकसभा के बारे में अगर बात करते हैं, तो जैसे अगर आप लोकसभा की बात करते थे, तो इट हैज़ बीन स्पेसिफाइड दैट द लोकसभा एंड राज्यसभा, और यू कैन से द पार्लियामेंट, will make all kinds of the decision for the public. But who make the parliaments, and what are the members who can sit in the parliaments, so that all thing decision is being taken by the people of the country, because we live in a democratic criteria. तो क्या होता है कि लोकसभा से जो भी डिसीजन पास होना है, और जो भी लोकसभा के एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स बनते हैं, उनको चूज करने का अधिकार हमारे पास है. सो अल्टीमेटली वी आर रिप्रेजेंटिंग आवर सेल्फ इन द Lok Sabha and Rajya Sabha. So it's not practically possible that each and every person can go and sit to take any of the specific decision. So for that sake, we simply make a specific arrangement. Under this arrangement, we elect our representative. जैसे हमने एमपी की बात की थी, तो एक बड़ी से एरिया को एक कॉन्स्टिट्यूंसी बना दी जाती है, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, एंड ऑल द मेंबर्स हु हैव कंप्लीटेड द 18 ईयर्स ओल्ड, जो उस एरिया में रहने वाले लोग होते हैं, they will cast their vote, and whosoever get maximum vote win the elections and get a one specific reserved seat in a parliament. ठीक है, so by just casting our vote, we just showing that we are just transferring our representative in the parliament, and that particular person will take the decision on behalf of us. Acha, next thing is that the constitution designer was very keen about overcome of the parts and other things, and the limitation of the parts too. It might happen in future the government will become a powerful and it will change all the things. So for that sake, the constitution designer has set the limitations on the power of the government that we are going to discuss today. ठीक है, तो देखिए, the limitations in the power of the government means the government cannot make each and everything changed. अनडाउटेडली इस गवर्नमेंट इज़ बीइंग चूजन बाय अस, हम लोग गवर्नमेंट को बना के भेज रहे हैं और डेमोक्रेटिक की वजह से. लेकिन गवर्नमेंट क्या है, वो सारे रूल्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में हैं उन सबको बदल नहीं सकती है. देखिए, बस बट दिस इज क्लियरली नॉट इनफ. सपोज यू डिसाइड हु हैड अथॉरिटी टू मेक द डिसीजन. जैसे आपने ये डिसाइड कर लिया कि कौन सी अथॉरिटी है जो आपको डिसीजन
आपके बिहाफ पर डिसीजन लेगा। जैसे हमने सोच लो कि सपोज दैट करंटली इन द सेंट्रल गवर्नमेंट वी आर हैविंग अ बीजेपी गवर्नमेंट, सो इट मीन्स द मैक्सिमम पीपल ऑफ द कंट्री has decided that this is the authority who will take all our decisions। यानी हमने अपने वोट देके या मैक्सिमम वोट देके बीजेपी को एक अथॉरिटी बनाया है जो कि हमारे बिहाफ पर हमारे लिए ही डिसीजन लेगी। ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम क्या हो सकती है, there might be the problem the government will be overcome on the people and they change the lot of rules and start making a lot of differences on the rules and regulations. So for that things the government has decided the constitution has decided a very important limitations for the government that we are going to discuss in detail. Dekhe, but then this authority passed the law that you thought were patiently unfair. It is prohibited you from practicing your religious and instant, or it adjoins the clothes of the certain colors were prohibited, or you were not we are free to sing certain songs, or the peoples who belongs to the particular caste were has to serve others would be allowed to retain any properties। ठीक है, देखिए this all are things कि it might happen कि लिमिटेशन की ज़रूरत कहाँ पड़ती है। तो हम ये डिस्कस करें कि सपोज दैट हमने अपनी अथॉरिटी तो बना दी, लेकिन ये हो सकता है जब अथॉरिटी पावर में आ गई तो वो बहुत सी चीज़ों को बदल सकती थी। जैसे फर्स्ट थिंग्स की वो ये बदल सकती है कि आप कौन से का, जो हमें क्लोथिंग का अधिकार है तो गवर्नमेंट कहती है नहीं आप ये क्लोथ्स नहीं पहनेंगे, यू विल बी फिक्स्ड फॉर द वेयरिंग फॉर द स्पेसिफिक क्लोथ्स ओनली, या किसी भी पर्टिकुलर चिंग को प्रोहिबिटेड कर दे, स्टॉप्ड कर दे। इसके अलावा आपकी सिंगिंग या आप जो भी कर रहे हैं व्हाट्स एवर द प्रैक्टिस यू आर डूइंग, जैसे रिलीजियस प्रैक्टिस, social practice, personal practice, any development practice, the government can stop for that। Then in that situation you will wait for the next 5 years। आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि क्या होगा अगर ऐसा गवर्नमेंट कुछ कर देती है, तो अब आपके पास ऑप्शन क्या आता है, 5 साल के बाद का ऑप्शन आपके पास आएगा कि आफ्टर द 5 years you can change the government, but up to the 5 years you have to suffer for that। So for that sake the constitution has make some particular limitations for the government, that the government cannot change a few of the things which is constitutionally given to the public, जिसको हम कह सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैं, यानी जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनको गवर्नमेंट एबॉलिश नहीं कर सकती है, उनको बदलाव नहीं, उनमें बदलाव नहीं कर सकते हैं। और द गवर्नमेंट could arbitrarily arrest someone who only to certain skin colors would be drawn waters from the wall, and you would obviously think that the law were unjust, unfair, and even though they would pass via the government that has come existence based on a certain procedure, there would be something obviously unjust about that the government enacting these laws। ठीक है, तो हो सकता है कि गवर्नमेंट अब क्या करे, जैसे रेशलिस्ट चलते थे जो हम लोग ने साउथ अफ्रीका में डिस्कस करे, तो हो सकता है गवर्नमेंट ये कह दे कि भाई आप इस कलर के हैं तो आप इस कुएं से पानी नहीं भरेंगे, या और से बहुत से कानून बना दे जो दैट इज अनजस्ट फॉर यू। सो फॉर दैट सेक द थर्ड फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेट, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने एक ऐसा फंक्शन सेट किया है सो दैट द गवर्नमेंट कैन नॉट ओवरकम्स एंड कैन नॉट abolish योर राइट्स एंड अदर्स थिंग्स। सो इन दिस वे द कॉन्स्टिट्यूशन हैज फिक्स्ड द limitations of the government, that you are providing the authority for the government no matter at all, but the government cannot make each and everything and cannot impose each and everything or any types of the things on you only। So for that the constitution has made some of the provisions। जैसे देखिए the third function of the constitution is to set some limitation on what the government can impose on its citizens। देखिए कुछ limitations बनाई हैं कॉन्स्टिट्यूशन, केवल वही limitation गवर्नमेंट आप पर impose कर सकती है। These limitations are fundamental in the sense that the government will never trespass them। देखिए कुछ रूल्स और कुछ लिमिटेशंस आपके टाइम पर ये बना रखे हैं जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। जैसे इन अर्ली क्लासेस यू डिस्कस अबाउट द फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। टोटल हमें 6 फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं बाय द कॉन्स्टिट्यूशंस। सो गवर्नमेंट इज नॉट कैपेबल टू एबॉलिश आवर फंडामेंटल, जैसे राइट टू स्पीक है, ठीक है, राइट टू यूज एनी रिलीजियस प्रैक्टिस है, और बहुत सारे इन क्लास नाइन्थ यू हैव वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दैट। ठीक है, क्लास नाइन्थ में उन चीज़ों को डिस्कस किया था। राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू स्पीक है, बहुत सारे अंडर दीज राइट्स हैव बीन गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो by giving these particular rights to the public
the constitution has fixed and limited the power of the government. Otherwise the government will be free to make any changes and to impose any changes on the public. तो जो constitutional rights हैं वो हमारे पास है, और उस constitutional rights की वजह से government उन चीज़ों को बदलाव नहीं कर सकती है, because this thing has been mentioned on the constitution that the government cannot make any changes on the constitutional right. ठीक है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशंस लिमिटेड द पावर ऑफ द गवर्नमेंट इन मैनी वेज। अब देखिए हमने एक वे तो समझ लिया। अब देखिए द मोस्ट कॉमन वे इज लिमिटिंग द पावर ऑफ द गवर्नमेंट टू इज स्पेसिफाइंग द सर्टेन फंडामेंटल राइट दैट ऑल ऑफ अस पोजेस एज अ सिटीजन एंड नो गवर्नमेंट कैन बी अलाउड टू वायलेट। देखिए आगे वही बात, द मोस्ट कॉमन लिमिटेशन जो है वो ये है, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइड अस द फंडामेंटल राइट्स एंड no government is allowed to abolish and violate these rights. Second, the enact the exact content of a interpretation of these rights varies from constitution to the constitution, but most constitution will protect the basic cluster of right। देखिए अब इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं या कहीं और का कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो ये जो फंडामेंटल राइट्स है वो अलग अलग होंगे। कहीं पे कुछ अलग फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे, इंडिया में कुछ अलग, एज पर द सिचुएशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से फंडामेंटल राइट्स होते हैं। ठीक है, बट उन सब में क्या है, कुछ पर्टिकुलर और कुछ बेसिक क्लस्टर ऑफ राइट्स है, जैसे राइट टू लिव है, अपना संपत्ति, राइट टू प्रॉपर्टी था पहले, उसमें कुछ अमेंडमेंट किया गया था। इसके अलावा बहुत से हैं राइट्स जो हमारे, जैसे राइट टू स्पीक है कि हमें अपने जो चाहे वो हमें बोलने का अधिकार है, तो कहीं पर वो नहीं दिया गया है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ने वो दे रखा है। तो वो दीज आर वेरी, बट जो बेसिक क्लस्टर है वो सब में सेम है। सिटीजन्स विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग अरेस्टेड आर्बिट्रेरीली फॉर नो रीजंस। देखिए इट हैज़ बीन फिक्स्ड बाय दैट। जैसे अगर आप लोगों ने क्लास 10th में हिस्ट्री पढ़ा होगा तो एक रोलैक्ट एक्ट जो था, इट वाज बीइंग इम्पोज्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू ऑल द इंडियंस। तो उसके लिए उनमें ये कहा था कि आप किसी भी इंडियंस को, इफ़ ही और शी इज सस्पेक्टेड, तो यू कैन जस्ट टेक हिम इन अ चार्ज फॉर मोर देन 2 years। तो जैसे बेसिकली ये गवर्नमेंट्स का लॉ है कि अगर किसी भी वजह से आप सस्पेक्ट हैं तो आपको जो कस्टडी में रखा जाएगा, तो उसके कुछ डेज में, 2 या 3 डेज में आपको हर हाल में कोर्ट में पेश किया जाएगा, बिकॉज यू आर गिल्टी और नॉट, दैट डिसीजन इज बीइंग टेकन बाय द कोर्ट ओनली। Police can arrest you, but police cannot make the final decision that you are guilty or not. So this has been the rule has made that nobody can arrest you, and जैसे यहाँ पे दिया ना, citizen will be protected by being arrested arbitrarily for no reason, बिना किसी रीजन के या बिना किसी वजह से आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता था। तो रोल एक्ट में यही होता था कि जो सस्पिशियस होता था या अगर लगता था कि हाँ ये संदिग्ध है, इसने कुछ ऐसा किया है, तो उसको वो अरेस्ट कर लेते थे और 2 years तक ट्रायल पर रख सकते थे। मतलब विद इन 2 years तक आपको ट्रायल पर रख सकते थे बिना कोर्ट में पेश किए। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ मेंशन की गई है कि अगर आप किसी को बिना किसी रीज़न के अरेस्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि हर एक चीज़ के लिए जो जो अरेस्टिंग के लिए आर्टिकल्स हैं या जो एक्ट हैं वो पहले से प्रिस्क्राइब्ड है कि अगर आपने कोई भी स्पेसिफिक क्राइम किया है तो उस क्राइम को करने के लिए आपको कौन सा पनिशमेंट अरेंज है, एंड पनिशमेंट कैन बी गिवन बाय द कोर्ट ओनली। नो पुलिस बॉडीज कैन गिव यू एनी पनिशमेंट। पुलिस आपको कोई भी पनिशमेंट नहीं दे सकती। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द बेसिक लिमिटेशन अपॉन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। अगर देखिए अगर ऐसा होता तो गवर्नमेंट क्या करती, जो उनको वोट नहीं दे रहे उन सबको उठा के जेल में डाल देती। तो ये बेसिक लिमिटेड करती है पावर ऑफ द गवर्नमेंट को कि हमें ऐसा अधिकार दिया गया है कि बिना कोई वजह से हमें कोई भी अरेस्ट नहीं कर सकता। दूसरा ये है कि जो कोर्ट है उसे गवर्नमेंट से फ्री किया गया है। जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट, इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट डिसॉल्व भी होती है, नेक्स्ट भी बनती है, हर बार गवर्नमेंट बनाने वाले अलग अलग पार्टीज भी हो सकती हैं, या सेम पार्टी भी रिपीटेड गवर्नमेंट बना सकती है, बट द जुडिशरी विल रिमेन सेम। इट इज़ परमानेंट बॉडी एंड इट नेवर बी डिसॉल्व। ये कभी डिसॉल्व नहीं होती है, बस इसके जो आपके जज होते हैं दे सिंपली रिटायर्ड एंड गेट न्यू जज गेट अपॉइंटेड। ठीक है, सिटीजन्स विल नॉर्मली हैव अ राइट टू सम बेसिक लाइबिलिटीज। जो बेसिक लाइबिलिटीज है उनके राइट, जैसे देखिए टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, हमें कॉन्स्टिट्यूशनली राइट मिला है कि हम अपनी बात को या अपनी स्पीच को कह सकते हैं। फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ कंडक्टिंग द ट्रेड एंड बिजनेस। आप जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो, आप जहाँ चाहो वहाँ घूम सकते हो, आप जैसा चाहो वैसा एसोसिएशन बना सकते हैं,
और आप जैसा चाहें वैसी ट्रेडिंग और बिजनेस कर सकते हैं। In practice, these rights can be limited during the time of the national emergency, and the Constitution specified the circumstances under which the rights may be withdrawn. देखिए स्पेसिफिक सिचुएशन में, जैसे कोई पैंडेमिक है, जैसे अभी की पैंडेमिक की सिचुएशन होती है, या फिर और कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि कोई अदर कंट्री हमारी कंट्री पर सीवरल अटैक करे, बहुत डेंजरस सिचुएशन आ जाए, उस सिचुएशन में जो फंडामेंटल राइट्स है वो खत्म हो जाते हैं। इवन द गवर्नमेंट राइट भी खत्म हो जाते हैं, और प्रेसिडेंसी पावर जो होती है वो पूरी कंट्री को टेक ओवर कर लेती है, जिसको कहते हैं राष्ट्रपति शासन जो है वो लग गया। ठीक है, तो उस तीन सिचुएशन होती है, या तो किसी स्टेट गवर्नमेंट में कोई गवर्नमेंट नहीं बन पा रही है, इलेक्शन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, या कुछ और इशू रहता है। सेकंड रहता है कि इमरजेंसी के केसेस में, तो उस केसेस में हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको थोड़े समय के लिए पॉज किया जा सकता है, बट उनको कंप्लीटली वायलेट नहीं किया जा सकता, उनको डिसमिस नहीं किया जा सकता, उनको डिस्कार्ड नहीं किया जा सकता। ठीक है, सो दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड, एंड आई थिंक इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस द नेक्स्ट वन। थैंक यू वेरी मच।